इट वाज लेफ्ट, यस, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। मुझे लग रहा था कि छूट गया था। देखो, हम लोगों को एरिया ऑफ ए सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ ए सेगमेंट जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, दिस रीजन इज कॉल्ड द सेगमेंट। अब इस रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस वाले सेक्टर का एरिया निकालने, अपन ओ ए एम बी इस वाले सेक्टर का एरिया निकालने, और इस वाले सेक्टर का एरिया निकालने के बाद हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया अगर निकाल लें तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अब देखो, सेक्टर का एरिया तो हमें पता है, हमने सीखा हुआ था कि सेक्टर का एरिया क्या होता है सर। सेक्टर का एरिया होता है सर थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड सर। लेकिन अब बात आती है इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेटा एक काम कर कीजिए, ये AO और ये रेडियस AO और OR जो है, इन AO और OB जो है, सपोज करो दीज टू रेडियसेस आर मेकिंग एन एंगल थीटा। मान लो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। अब हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, कोई भी जनरल ट्रायंगल। I am not saying that it is an equilateral triangle. I am not saying it is an isosceles triangle. Area of any general triangle is half multiplied by base multiplied by height। ठीक है, half multiplied by base multiplied by height। अब ये जो ट्रायंगल है माय डियर फ्रेंड्स, ट्रायंगल AOB, इसका इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने A से, ये A है, ये O है, ये B है, मैंने A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया OB पे, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P। ठीक है सर, बोल सकता हूं ये वाला एंगल है थीटा एंड दिस OA इज R। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा। कैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा माय डियर फ्रेंड, मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि सिंस दिस इज परपेंडिकुलर, तो व्हाट आई विल से AP डिवाइडेड बाय OR is equal to sine AP divided by OA. I'm sorry, this was a writing error. AP divided by OA is equal to sine of theta. So AP will be equal to OA multiplied by sine theta. And OA क्या था? OA is R. तो AP is equal to R times of sine theta. अब हमारा जो ट्रायंगल का एरिया है वो क्या है? That is half into AP multiplied by OB. So this is equal to half into R sin theta multiplied by R, which is equal to half of R square sin theta. So this was the area of this triangle. इस ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू R स्क्वायर इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द chord on the center. The theta is angle subtended by this chord on the center. So my final area will be area of this triangle will be half into R square sin theta, और इस सेक्टर का एरिया था थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। ठीक है, इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेगमेंट। Okay, so now we will see there are some internet. So the area of this triangle will be half into R square into sin theta. The area of this triangle will be half into R square into sin theta, and the area of this whole sector will be theta upon 360 multiplied by pi R square. So if you subtract both of them, then you will get the area of this segment, that is AMBA. You will get the area of this segment AMBA. Okay, I hope it is okay now. So the area of the segment will be equal to half into
theta upon 360 multiplied by pi r square minus half into r square into sine theta. So this was the area of the segment AMBA. Now what I will do is questions, my favorite part. Wait, I'll just repeat it. Fine. So you guys want me to repeat how I calculated area of this triangle. So area of this triangle is nothing but half into base into altitude. So what I have done is from A, I have drawn a perpendicular, I have dropped a perpendicular on side OB, and by using trigonometry, I have calculated this AP, which will be equal to AP upon R, will be equal to sine theta. So AP will be equal to R times of sine theta. So in this way, I got the value of perpendicular, and then I use this formula half into base into height. So it will be half into R sine theta, which is equal to half R square sine theta. So the area of this triangle will be half into R square into sine theta. Now there will be different cases, and according to the different cases, we have to adjust our formula. We have to adjust our formula. The basic will be that the area of the triangle is half into base into altitude. By using that concept only, you have to calculate the area of this triangle. रेस्ट आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा केस दे दिया जहां पे they are saying that this chord is also equal to the radius, वहां पे फिर आप हाफ r स्क्वायर sin थीटा क्यों लगाओगे? वहां पे सीधे सीधे एरिया ऑफ द ट्रायंगल लगा दो, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल लगा दो. सो देयर विल बी डिफरेंट केसेस, जिसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ सोच के करना पड़ेगा. You can't be dependent on a single formula and you will say that हाँ ठीक है, fine, I have learned everything. Fine. So now comes the question part, my favorite part. ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए. इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास हैं, you guys have just 2 minutes. Fine. So your time starts now. पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था उसकी बात करते हैं. लेंथ ऑफ इट्स आर्क और एरिया ऑफ द आर्क की बात कर रहे हैं. ये तो एक फिगर बना लेते हैं भाई, बना लो. फिगर हमने बना लिया. ये एंगल है 150 डिग्री. फाइन. और ये जो रेडियस है, दिस आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. तो ये मुझसे पूछ रहे हैं, अगर ये O है, ये A है, ये B है, और ये मान लो X है, कोई पॉइंट है यहाँ पे X. तो सबसे पहले तो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि एरिया ऑफ AOBXA का एरिया क्या होगा. पहली चीज तो इन्होंने मुझसे ये पूछी है, और दूसरी चीज, आई एम सॉरी, और दूसरी चीज जो इन्होंने मुझसे पूछी है, वो इन्होंने मुझसे ये पूछा है कि इस AXB का लेंथ क्या होगा. ये दो चीजें इन्होंने मुझसे पूछा है. तो सबसे पहले एरिया निकालते. एरिया निकालने का हमने क्या सीखा था कि थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर. अब पाई कितना है हमारा? पाई इज 22/7. तो सबसे पहले पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं. Pi r square is nothing but 22/7 multiplied by 21 into 21. So this is basically 7 से ये 21 कैंसिल हो जाएगा. So this is nothing but 66 into 21. अब कोई मुझे ये कैलकुलेट करके बताएगा? नहीं कैलकुलेट करके बताओगे तो भी कोई बात नहीं है. I can calculate it very easily.
कैसे कैलकुलेट किया सर मैंने? इट्स वैल्यू विल बी 1320 प्लस 66 दैट इज इक्वल टू 1386। कोई भी पर्सन मुझे कैलकुलेटर से कंफर्म करके बता दो। करेक्ट करेक्ट, Okay, 1386। thank you. So it is coming out to be 1386। मैंने कोई मैजिक नहीं किया, मैंने बस इस 21 को 20 प्लस 1 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया और उसके बाद मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट करके ऐड कर दिया। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 1386 और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी थी? रिमेंबर यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ थीटा इन डिग्रीज। You have to take the value of theta in degrees। कहीं कभी अगर आपको क्वेश्चन में थीटा अगर रेडियन में दिया होगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको डिग्री में, ठीक है? So it will be 150 upon 360 multiplied by 1386। अब बात यह आती है इसको कैंसिल कैसे करें? सिंपल सी बात है सर, कर दो ना कैंसिल। अभी इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसको 3 से करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 5 by 12 मल्टीप्लाइड बाय 1386, ठीक है? अब अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? 1386 को इसको डिवाइड कर दो। It will be somewhat less than 650 plus 43, that is जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो 693 से थोड़ी सी कम आनी चाहिए। So those who have given the answer less than 693, their answer will be definitely correct। एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। So it will be 5 upon 12 multiplied by 66 into 21। अब क्या करो, इसको यहाँ से कैंसिल कर दो, ये हो गया 4, ये हो गया दिस विल बी 22, ये हो गया 2, ये हो गया 11। So this will be basically 55 into 21 divided by 2। अब इससे ज्यादा हम लोग कुछ कैलकुलेशन कर नहीं सकते हैं, ठीक है? तो 55 into 21 divided by 2 कैलकुलेट कर लेना। whatever will you will get the result, that will be your answer, ठीक है? कोई मुझे कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आएगा? 577.5। ठीक है। So the answer will be 577.5। The answer will be 577.5, although I have already calculated it। अच्छा एक बात बताओ, अगर एग्जाम में आपके पास ऐसा आ ही जाए कि इस कैलकुलेशन को आपको करना है तो how will you do? My question is you are having 5 upon 12 multiplied by 66 into 21। अब इस कैलकुलेशन को how will you guys do quickly? Just tell me, how will you do quickly without spending much of the time? कैसे करो? किसी के पास कोई आइडिया है? Sir, split 66 into 6 into 11। 66 into 6 into 11, चलो कर देते हैं। So basically your friend is saying 5 upon 12 multiplied by 6 into 11 into चलो 3 into 7 भी कर दिया बेटा। इससे मैंने इसको कैंसिल कर दिया, 2 हो गया। अब इससे ज्यादा कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है यहाँ पे। So basically it will be 55 into 21। So अब इस कैलकुलेशन को आपको you should not spend any time, to write Sir, it as, हाँ कुछ गलत डिवाइडेड बाय 2। हाँ डिवाइडेड बाय 2 भी Sir, 55 into 20 plus 1। हाँ 55 into 20 plus 1, definitely 55 into 20 plus 1, and 55 into 2 is 110, 110। and 55 into 20 will be 1100, and 1100 plus 20 plus 55 will be 1155 divided by 2। So अब इसको जब 2 से डिवाइड करना है भाई 1100 का आधा होता है 550 एंड 55 का आधा होता है 27.5। हाँ 27.5। So your answer will be 577.5। So your answer will be 577.5। This was a method. You guys can have a better method, but this was a method of calculation जिसको मैं यूज करता हूँ।
अगर मुझे कैलकुलेट करना होता तो मैं इसको इसी तरीके से कैलकुलेट करता। ठीक है, अब इस चीज को नोट कर लो कि एरिया ऑफ दिस सेक्टर वाज 577.5। वी विल यूज दिस व्हाइल कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है। So length of the arc will be 5/12 multiplied by 2 into 22 by 7 into what was the radius 21। तो अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया, ये 2, ये 6 हो गया। So एंड यहाँ पे ये 2 हो गया और ये 11 हो गया। So the radius, so the length of the arc is 55। So you guys had given करेक्ट आंसर। एक जो एरिया था वो 577.5 था और जो लेंथ आया था वो 55 आया था। वेरीफाइड। बट नाउ माय क्वेश्चन, हाउ विल यू कैलकुलेट एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल? उस एक ट्रायंगल का एरिया, हाँ बताइए। Sir, I have a doubt. Sir, it is asking the length of the arc. Sir, should we include the radius also? Because No. Length of the arc is this one, this length only. You are not supposed to include this radius. अगर आपसे पूरे सेक्टर का लेंथ पूछा जाता, अगर आपसे पूरे सेक्टर का पेरीमीटर पूछा जाता, दैट्स व्हाई आई वांट वीडियोस ना। अगर आपसे पूरे सेक्टर का पेरीमीटर पूछा जाता तब आप इस रेडियस की लेंथ को ऐड करते। दिस इज अ कॉमन कंफ्यूजन। ठीक है, तो अगर लेकिन अगर आपसे पूरे सेक्टर का लेंथ नहीं पूछा गया, आपसे सिर्फ इस आर्क का लेंथ पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए आप उसको ऐड नहीं करोगे। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आई वाज सेइंग, what will be the area of the triangle। उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे सर? बहुत ही बड़ी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर से अगर आप लोग नहीं, अब आप लोग को के ट्राई करने का समय खत्म हो चुका है। ये एंगल है 150 डिग्री। ठीक है, और साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ बोलिए। Sir, I got the area of triangle as 441√3/4। How? Sir, actually I did a bit construction. So we have a point M. So what I did was I joined OM, then I joined AM and BM too. And from sir, if you draw it, it would be better. Okay, मैं समझ रहा हूँ। बोलिए आप बोलिए। Yes, sir. So then what I did was we know that OM would be perpendicular to AB. I draw OM such that OM is perpendicular to AB. So from there I got two triangles, and that is APM and BPM, where P is the intersection point of OM and AB. From there I proved both triangles as congruent, and from there I got the angle for those triangles, the angle PAM and angle PBM. So now I took the triangle MAO. So in that what I got was angle MAO was equal to 30 degree, while angle AOM was 75 degree and angle AMO was also 75 degree. So from isosceles triangle property I got AM equal to 21 and I got AM equal to 21, and from there since OM was the radius, we can say that 2H is equal to 21. So H, because H would be the same H, and 2H is equal to 21, and from there I calculated it. Okay. My dear, what is the good name? Yeah, 3. Okay, fine. Great. Actually, I will also tell you more or less the same thing, but in a simpler manner. आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल का नाम लिया आपने एक्सप्लेनेशन में, है ना? मैं उसी आइसोसेलेस ट्रायंगल को यूज करके आपने जो इतना बड़ा आपने जो प्रोसेस किया ना, मैं आपकी मेहनत को जस्ट रिड्यूस करके हाफ कर दूंगा। देखो कैसे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तो आप जानते हो, ये तो आप लोग मानते हो कि एक सर्किल जो है, उस सर्किल के जो दोनों रेडियस होंगे वो दोनों इक्वल होते हैं, मानते हो ना?
अब अगर आप लोग ये बात मानते हो तो आई होप एवरीबडी ऑफ यू will agree to the fact that triangle AOB is an isosceles triangle. बोलो yes or no? Triangle AOB is an isosceles triangle because OA is equal to OB, OA is equal to OB क्योंकि ये जो है रेडियस है। अब माय डियर फ्रेंड्स, हमें ये पता है कि एक ट्रायंगल में, हमें ये पता है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि जो साइड्स होते हैं, ये दोनों जो एंगल्स होते हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से दैट इफ दिस एंगल इज थीटा, so this angle will also be theta. So from angle sum property of the triangle, I will say that 2 theta is equal to 180 degree minus 150 degree. So that will give me theta is equal to 30 degree. 15 degree. That will give me theta equal to 15 degree. अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा. I will drop a perpendicular, say OD. I will drop a perpendicular, say OD. फाइन. अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम अभी भी आएगी कि आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ 15 डिग्री, मेरे को 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है. सो टेक्निकली स्पीकिंग, फॉर योर स्टैंडर्ड दिस 150 डिग्री डेटा इज रॉन्ग, इट शुड बी 120 डिग्री. अगर आपको सेगमेंट का एरिया निकालवाना है तो दिस शुड बी 120 degree. Then you can very easily calculate. But here, just understand the process. Just understand the process. What I want to say. Suppose this angle was 120 degree. ठीक है, एक सेकंड रुको. Suppose but we can do 45 minus 30, no? No, but you are not supposed to use any theorem that like sin A minus B, cos A minus B, सब आपको अप्लाई नहीं करना है यहाँ पे. That is the problem. That is the glitch here. Otherwise 150 डिग्री से भी आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट कर सकते थे. आप उसको डायरेक्ट कर सकते थे. तो अभी सुनो, मेरी बात सुनो. So technically it should be 120 degree. अगर ये एंगल 120 डिग्री है my dear friends, so this angle theta will become 30 degree. ये जो हमारे पास 15 डिग्री आया था, this angle theta will come out to as 30 degree. अब इस वाले ट्रायंगल की बात अगर मैं करूं AOD की, now in triangle AOD, OD divided by OA is equal to sin theta. ठीक है, which is equal to sin 30 degree. So OD will be equal to OA multiplied by sin theta. Here theta has changed. Here theta is this one. So finally my area of this triangle will become half into OA sin theta multiplied by this AB. अब प्रॉब्लम ये है कि how will you calculate लेंथ ऑफ दिस AB? अभी तो हमें AB की लेंथ भी नहीं पता ना. तो AB की लेंथ निकालने के लिए no, please don't use anything that you are not supposed to use. अभी आपको सिर्फ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है. प्लीज अंडरस्टैंड, you are only supposed to use trigonometry. जब आप log of cosine यूज करोगे, law of sin यूज करोगे, तो उससे अच्छा sin 150 की वैल्यू निकाल दो ना यार. What I am trying to say you is this is a very technical question that will revise your concepts of circle. अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है. प्लीज डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन. लॉ ऑफ कोसाइन, AB, sin थीटा, cos थीटा, प्लीज डोंट इंटरप्ट, ठीक है. So this angle, this was O, this was A, this was B, और ये एंगल था 120 डिग्री, ठीक है. तो हमने ये इस एंगल को कैलकुलेट कर लिया था और इस एंगल को कैलकुलेट कर लिया था. अगर इसको अपन थीटा बोल रहे हैं, सो वी गॉट दैट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री.
कैसे आया था थीटा 30 डिग्री सर? ये आप लोग को पता ही है, 120 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो दैट गिव्स मी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा से AD OD, I know that from the property of isosceles triangle I also know that AD is equal to BD। तो अगर मैं AD को कैलकुलेट कर लूं तो मैं उसके ट्वाइस करके I can calculate BD। वैसे भी मुझे ये पता है कि सर्किल के सेंटर से अगर मैं कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो दैट कॉर्ड विल बाइसेक्ट, दैट परपेंडिकुलर will bisect the chord, ठीक है। So I will get AD upon R is equal to cos theta, so AD will be equal to R cos theta, or twice of AD will be equal to 2R cos theta। So my area of triangle will become half into 2R cos theta multiplied by R sin theta। R sin theta आया था पिछली स्लाइड में, तो हाफ इंटू 2R cos theta into R sin theta, 2 से 2 कैंसिल हो गया, so it will be R square cos theta multiplied by sin theta। This will be the area of the triangle। This will be the area of the triangle where theta is 30 डिग्री। हम लोगों ने जो किया था, जो 150 वाला जो डेटा लेके जो क्वेश्चन था, that was also technically correct, लेकिन वहां पे एक थ्योरम, एक आइडेंटिटी हमें यूज करनी पड़ेगी। that identity since you have not learned, so you are there is no point of telling that identity, ठीक है। so for your standard technically this angle cannot be 150 degree, and this I am telling you on record कि ये एंगल 150 डिग्री का नहीं हो सकता। दिस एंगल शुड बी 120 डिग्री, ठीक है, अप टू योर स्टैंडर्ड। फॉर 11th and 12th दिस एंगल कैन बी एनीथिंग। सो आई होप यू जस्ट अंडरस्टूड हाउ कैन यू कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इफ दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्योंकि हम लोगों ने इस चीज को, हम लोगों ने जो पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, जो हम लोगों ने एंगल्स पढ़े वो 0 से 90 डिग्री तक ही पढ़े हैं। तो हाफ R स्क्वायर साइन थीटा जो था, अब उसमें 0 से 90 डिग्री तक का तो कोई भी एंगल होगा वो तो आप निकाल लोगे, वो तो मुझे पता है। लेकिन अगर 90 डिग्री से ज्यादा का हुआ तो कैसे निकालोगे, उसका ये तरीका है। पूछ सकते हैं, पूछते भी हैं, पूछा भी है पास्ट में, आगे भी पूछेंगे। So this is the method how you will calculate this angle if it is greater than 150 degree, ठीक है, if it is greater than 90 degree, I'm sorry। So the next question on your computer screen is this one। So you have to solve this question, and the time allotted for this question is just 2 minutes। Try till then I will just sit silent। आप लोगों को हमें मेथड पता है, द मेथड इज थीटा अपॉन 360। भाई आपको ये वाला एरिया निकालना है, तो ये वाला एरिया विल बी एरिया ऑफ OBAO माइनस एरिया ऑफ ODCO। तो OBAO का एरिया कितना होगा, 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू 7 स्क्वायर, और इसका एरिया कितना होगा 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू 3.5 का होल स्क्वायर। अब भाई देखो, जो मुझे जानते हैं वो भी सुने, जो मुझे नहीं जानते वो भी सुने। मैं हूं थोड़ा आलसी इंसान, मैं इतनी कैलकुलेशन तो करने वाला नहीं। मैं क्या करूंगा, आई विल लुक फॉर फ्यू थिंग्स जो कि कॉमन है। कॉमन क्या है यहाँ पे, 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है, ये मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है, तो मैं इसको कॉमन ले लूंगा। अभी मैं इसको पाई को पाई ही रहने दूंगा। आई विल टेक दिस कॉमन, and before taking this common I need some space, so I will move to next slide। मैं क्या करूंगा, 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मैंने कॉमन ले लिया,
और पाई को भी मैंने कॉमन ले लिया। अब मेरे पास बचा 7 स्क्वायर माइनस 3.5 का होल स्क्वायर। स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ये 3.5 आई डोंट वांट टू डील इन डेसिमल्स, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको 7/2 लिख दूंगा। सो इट विल बी 7 स्क्वायर माइनस 7/2 that is 7 square upon 4। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस एंड टेक द एलसीएम। व्हाट आई विल डू इज, अब देखो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे कुछ बहुत अच्छी कलाकारी करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे भी 7 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 7 स्क्वायर है। यस, नो, आई विल नॉट डू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देखो यहाँ पे भी 7 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 7 स्क्वायर है, मैं क्या करूंगा, मैं 7 स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा एंड हियर इट विल बी 1 minus 1/4 which is equal to 7 square into 3/4। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैंने कुछ गलत किया? आप a प्लस बी इंटू a माइनस बी करते तो भी आपके पास वही चीज आती। मैंने क्या किया, यहाँ पे भी 7 स्क्वायर था, यहाँ पे भी 7 स्क्वायर था, तो मैंने दोनों में से 7 स्क्वायर को कॉमन ले लिया एंड इट विल बिकम 7 स्क्वायर इंटू 1 minus 1/4 which is equal to 7 square into 3/4। तो ये जो क्वांटिटी थी ना 7 स्क्वायर माइनस 3.5 का होल स्क्वायर, दिस रिड्यूसेस टू 7 स्क्वायर अपॉन इंटू 3/4। अब सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे सर? 1/12 multiplied by 22 by 7 multiplied by 7 into 7 into 3 divided by 4। सबसे पहले ये 7 से 7 कैंसिल करो, इस 3 से इस 12 को कैंसिल करो, इसको 4 करो, इस 2 से इस 11 को कैंसिल करो। So this will be 11 into 7 is 77, 77 divided by 8 which is equal to 9.98 जा 72, उसके बाद बचता है 5। So 9 6 जा will be 72 के बाद बचा, हाँ 72 के बाद बचा 5, तो पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 6 it will be 48, फिर 25। 9.625 is the correct answer of this question। अब आप लोग इसको समझो, तब तक मैं चैट देखता हूँ कि सॉरी सर इट शुड बी 77/24। विच वन 77/24? कुछ गलती की क्या मैंने? कुछ गलती की क्या मैंने? कहाँ पे 77/24 बेटा? I don't think I was getting the final answer. Okay. I was getting the final answer as 77/24. ठीक है। I thought you are telling that I have done some mistake. In fact, you are getting correct answer in the beginning, I guess. ठीक है. So this was the method of calculation. जस्ट कैलकुलेशन को जल्दी करने का, कैलकुलेशन को आसान करने का सबसे अच्छा और सबसे सटीक तरीका यह है कि अवॉइड डेसिमल्स। डेसिमल में डील मत करो। डेसिमल में डील करोगे गलती होने के ज्यादा चांसेस। अब आप लोगों ने जो कैलकुलेशन किया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोगों ने क्या किया होगा मैं आपको बताता हूं। Those who are still getting the answer, उन लोगों ने क्या किया होगा? सबसे पहले उन लोगों ने थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू 7 स्क्वायर को निकाला होगा। फिर उन लोगों ने थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू 3.5 का होल स्क्वायर को निकाला होगा। 3.5 का होल स्क्वायर, 35 का स्क्वायर इज 1275। I hope it is 1275. Please somebody confirm and tell me. 35 square is 1275. I know it is 1275, but 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.75। इट्स वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड। मेरे को नहीं करना इतना कॉम्प्लिकेशन से। क्यों करूं कॉम्प्लिकेशन से भाई, जब मुझे 12.25 आई वाज लिटिल बिट रॉन्ग, थोड़ा सा गलत हो गया। इट इज 12.25, लेकिन मैं क्यों करूं इतनी कॉम्प्लिकेशन से भाई, जब मेरे को पता है कि आई कैन राइट 35 एज 35, आई कैन राइट 3.5 एज 7 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे भी मेरे पास 7 है, यहाँ पे भी मेरे पास 7 है, तो मैं वहां से कुछ आसानी से कुछ कैलकुलेशन कर सकता हूँ। सो दैट शुड बी द लेवल ऑफ थिंकिंग। दैट शुड बी द लेवल ऑफ थिंकिंग माय फ्रेंड्स। अगर इस तरीके के आप लेवल ऑफ थिंकिंग रखोगे तो वो जो 80 मार्क्स का पेपर आपके पास आने वाला है आज से करीब 7-8-9 महीने बाद, उस पेपर को, उस 2-3 घंटे के पेपर को आप लोग 2 घंटे में फिनिश करके बैठ जाओगे।
That should be the level of thinking, and it will not only help you here, it will help you in the NTSC exam also. जब आप NTSC का एग्जाम दोगे तो वहां पे आपको हेल्प करेगा, नॉट ओनली इन NTSC एग्जाम, जो हम अपन जो मेंटल एबिलिटी पढ़ते हैं ना, देयर आल्सो इट विल हेल्प. नंबर शुड ऑलवेज डांस इन योर माइंड. एक पिक्चर आई थी कुछ दिनों पहले, तारे जमीन पर, पता नहीं आप लोगों ने देखी थी कि नहीं देखी थी. आप में से कई लोग तो उस टाइम बहुत छोटे रहे होंगे, आई थिंक 9-10 में आई थी पिक्चर तारे जमीन पे. तो उसमें वो बोलता है, वो जो लड़का है वो बोलता है कि ही हैज सम डिफेक्ट, सम मेंटल डिफेक्ट ही हैज. तो वो बोलता है कि सर लेटर्स आर डांसिंग, तो लेटर शुड नॉट डांस इन योर माइंड. डिस्लेक्सिया कहते हैं. हाँ वही जो भी है, मेरे को डिस्लेक्सिया याद आ रहा था, लेकिन फिर मैं मुझे लगा कि शायद आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड. तो उसको जो है वो डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी होती है. तो उसको बोलता है कि लेटर्स आर डांसिंग. आई एम नॉट सेइंग दैट लेटर्स शुड डांस इन योर माइंड, नो, बट नंबर शुड डांस इन योर माइंड. आप किसी नंबर को देखो, आपको ये 14 नहीं दिखना चाहिए. यू शुड लुक इट एज 7 into 2, क्योंकि आप एरिया के रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हो, यू आर डीलिंग विद पाई, सो दिस 14 शुड लुक एज 7 into 2 फॉर यू. चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को करके बता दो. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, जल्दी से फटाफट. हाँ, ज्यादा जान नहीं है इस क्वेश्चन में, जल्दी से करके बता दो. यू गाइस जस्ट हैव 2 minutes for that, and that will be the last question of the day. You guys just have 2 minutes for it. Answers of this question. देखो भाई, chord of circle of radius 14 centimeter makes an angle 60 degree with the center of the circle. Your friend has beautifully solved this question already. उन्होंने सबसे पहले ये बता दिया कि सर जो रेडियस होगा ना वो 14 सेंटीमीटर का होगा. अब आप निकाल लो आपको जो भी निकालना है, ठीक है. तो आई विल जस्ट गो विथ वॉट एवर शी हैज ऑलरेडी सेड. तो माइनर सेक्टर का जो एरिया होगा, एक बार डायग्राम बना लेते हैं भाई. ये 14, ये एंगल 60 डिग्री. इस कॉर्ड को अभी बनाने की जरूरत नहीं, चलो बना लो. तो माइनर सेक्टर का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 1/6 into 22/7 into 14 into 14. ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस मेजर सेक्टर. कोई अजूबा नहीं किया है मैंने. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता था, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ना बेटा. अब थीटा की जगह 60 डिग्री लिख दो, तो 60 से 360 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, डेट विल बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 6. फाइन. और मेजर सेगमेंट का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ना भाई. अब ये क्या है, 360 डिग्री माइनस थीटा मतलब 300 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये 5/6 हो गया ना, 5/6 इंटू पाई आर स्क्वायर. मैंने यही तो बोला कि माइनर सेक्टर का जो भी एरिया आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं माइनर सेगमेंट के एरिया की. तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इस ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 इंटू 14 स्क्वायर. अब ये जो वैल्यू आई थी 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर से √3/4 इंटू 14 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देना. हाँ ठीक है, इससे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, यू विल गेट एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, माइनर सेगमेंट. और पूरे सर्किल के एरिया से इस वाले सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यू विल गेट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. समझ में आया क्वेश्चन, या फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं? प्लीज कंफर्म, समझ में आया या? गुड. देखो पेपर, क्या कौन सा पार्ट बेटा? Can you repeat the minor segment part again? Okay, minor segment part. Okay, fine. So he wants to know about the minor segment part. तो कैसे हुआ सर, ये 14 है, ये 14 है, ये 14 है, ये 14, ये 14, ये 14, ये एंगल 60 डिग्री. ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा,
√3/4 multiplied by 14 into 14. √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। और इस वाले सेक्टर का जो एरिया होगा वो होगा 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो हाँ 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड करोगे माय डियर फ्रेंड तो यू विल गेट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सर्किल का एरिया जो अपन ने निकाला था that is pi r square, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4, और ये जो फर्स्ट माइनस सेकंड जो आया था इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। सो 4th माइनस 3 करोगे तो यू विल गेट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। यहाँ पे एक बात याद रखना, अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड डोंट पुट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 3। कहीं आपको ना दिया हो तो स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू मत रखना। एरिया आपका इरेशनल आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो, वो तो वैसे भी आएगा। अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड यूज √3 इज इक्वल टू 1.732, डोंट यूज द वैल्यू ऑफ √3, ठीक है। और जहां पे अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो वहां आपको पाई इक्वल टू 3.14 ही यूज करना है। फाइन। So this was all about today's class. So this was all about